So I'll go ahead with next example. Example 8.12. Two charged particles having equal charges. Two charged particles having equal charge 3 into 10 raised to minus 5 coulomb. Each are brought from infinity to a separation of 30 centimeter. Find the increase in electrostatic potential energy during the process. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सो Q1 एंड Q2 बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड 3 into 10 raised to minus 5 coulomb. So 3 into 10 raised to minus 5 coulomb is the magnitude on both the charges. These two charges are brought from infinity to a separation of 30 centimeter. मतलब पहला चार्ज लाए एक पोजीशन पे रख दिया तो नो वर्क वाज डन. दूसरा चार्ज लाए और दूसरे चार्ज को तुमने 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज 30 सेंटीमीटर, विच इज बेसिकली 3 into 10 raised to minus 1 मीटर, क्योंकि 30 into 10 raised to minus 2, तो 3 into 10 raised to minus 1. And you are supposed to find out what is the increase in potential energy. इस केस में increase in potential energy मतलब potential energy, क्योंकि पहले चार्ज को जब लाए तो वर्क डन हुआ ही नहीं, and when you bring the second charge, that work done is stored in the form of potential energy. So in this case, increase in potential energy means potential energy. I repeat again, क्योंकि तुम जब पहला चार्ज ला रहे हो तो वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है, तो पहला चार्ज जब लाए तो there was no potential energy. When you are bringing second charge, only then work was done. So in this case, to bring second charge, whatever work was done is nothing but potential energy. तो आपको potential energy ही find करना है, and you know what is the potential energy of system of two charges? क्या था फॉर्मूला? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. R स्क्वायर नहीं आता है, R स्क्वायर फोर्स में होता है, पोटेंशियल एनर्जी में होता है 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. तो सिंपल 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 raised to plus 9 Q1 Q2 सेम है तो Q स्क्वायर हो गया, तो Q1 की वैल्यू है 3 into 10 raised to minus 5 और Q2 की वैल्यू भी सेम है, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 into 10 raised to minus 1. गुड. तो ये आ गया आपके पास 1 जा 3 जा 3 into 10 raised to 9 और 10 raised to minus 10 10 raised to minus 1 10 raised to minus 1 और ऊपर और नीचे भी 10 raised to minus 1, तो क्या हो गया? कैंसिल. तो क्या बचा? 3 स्क्वायर मतलब 9 into 3, तो कितना आएगा? 27. तो 27 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल, डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 8.13. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges minus 2 microcoulomb and plus 4 microcoulomb with no external field placed at minus 8 centimeter, 0, and plus 8 centimeter, 0, respectively. तो बेसिकली दो चार्जेस है, एक में minus 2 microcoulomb है, दूसरा चार्ज है plus 4 और लोकेशन दिया है minus 8 and plus 8, both are on the x-axis. Suppose the same system of charges is now placed in an external electric field E equal to A 1 by R square, where A is 8 into 10 raised to 5 centimeter per centimeter square. What would be the electrostatic potential energy of the configuration? Good question. तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोला है कि दो केसेस है. पहले केस में you have two charges minus 2 and plus 4 microcoulomb located at 2 points minus 8 and plus 8 along the x-axis, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट 0 है. और पहले केस में there was no external field, सिर्फ दो चार्जेस थे. और दूसरे केस में सेम सिस्टम है, मतलब दोनों चार्जेस है, वही लोकेशन है, लेकिन दूसरे केस में there was an external field E A into 1 by R square. तो आपको पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. तो अभी ऐसा है ना, इसमें गिवन पैरामीटर में केस 1 और केस 2 दोनों केसेस में समथिंग इज कॉमन एंड समथिंग इज नॉट कॉमन. दोनों केसेस में कॉमन क्या है? सेम चार्जेस, -2 माइक्रो इज 10 to -6 कूलम
और Q2 इज +4 तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। पहले का लोकेशन है -8, दूसरे का है +8, तो डिस्टेंस हो गया 16। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन, एंड दिस इज ए पॉइंट, लेट अस से -8 0 0, एंड इफ दिस इज बी पॉइंट, द लोकेशन इज 8 0 0, तो दोनों में डिस्टेंस हो गया आपका पहले चार्ज में और दूसरे चार्ज में डिस्टेंस हो गया 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो सेपरेशन इज 16 सेंटीमीटर, 16 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा ये। तो डिस्टेंस आ गया 16 इंटू 10⁻²। गुड। अब ये दोनों केसेस में कॉमन था। अब केस 1 और केस 2 में कुछ चीज़ें कॉमन नहीं भी है। तो केस 1 में, मतलब केस ए में, एक्सटर्नल फील्ड 0 है, और अगर एक्सटर्नल फील्ड 0 हो तो एक्सटर्नल पोटेंशियल भी 0 होता है। एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड 0 तो एक्सटर्नल पोटेंशियल 0 है। केस बी में एक्सटर्नल फील्ड है A/r², तो ये जो है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो आपको फाइंड करने के लिए दोनों केस में क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों केस में सेम फॉर्मूला तो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। तो पहले केस में, केस ए में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट यू विल यूज। तो पहले केस में 2 ही चार्जेस है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अभी सॉल्व किया था 1/4πε0 Q1 Q2 by R, correct. What about second case? What is the potential energy in presence of external field? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल फील्ड था, पहला चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब तुम पहला चार्ज लाए तो पहला चार्ज लाए तो वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ तुम पहले चार्ज को रख रहे हो वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है, करेक्ट। प्लस जब तुम सेकेंड चार्ज ला रहे हो, पहला चार्ज लाए तो एक्सटर्नल फील्ड ने अपोज किया, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल। जब तुम सेकेंड चार्ज लाए, कौन कौन अपोज करेगा, फर्स्ट चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड। तो Q2 V of R2, V of R1 is the external potential at the location of first charge, V of R2 is the external potential at the location of second charge, plus जब तुम सेकेंड चार्ज लाए तो पहला चार्ज तो ऑलरेडी था वहाँ पे, तो सेकेंड चार्ज को तो पहले का पोटेंशियल भी अपोज करेगा। तो व्हाट इज V1 of R2? तो सिंपल है, इतना क्यों सोच रहे हो तुम, ध्यान दो यहाँ पे। अब तक हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होता है, 0। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड हो तो पहले चार्ज को लाने में वर्क होगा किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल फील्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, Q इंटू वी। तो Q1 इंटू वी, लेकिन ये वी कौन है, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है। अब जब तुम सेकेंड चार्ज को ला रहे हो, कौन कौन अपोज करेगा, एक्सटर्नल फील्ड और फर्स्ट चार्ज। तो 2 टर्म आएगी ना, Q2 इंटू वी वेर वी इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, एंड Q2 इंटू V1 वेर V1 इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो हो गया, करेक्ट। अब ये 2 फॉर्मूला आ गए केस ए और केस बी के। पहले केस ए सॉल्व कर लेते हैं। केस ए इज वेरी सिंपल। तो केस ए, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, -2 × 10⁻⁶। Q2 है 4 × 10⁻⁶। Q1 कितना था, -2 इंटू 4 इंटू 10⁻12। -12 कहाँ से आया, दोनों माइक्रो में थे, तो पहले चार्ज का 10⁻6 और दूसरे चार्ज का 10⁻6, तो कितना हो गया, -12 आ गया। गुड। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दोनों में, 16 सेंटीमीटर है ना, 16 है ना, 16 -8 + 8 मतलब 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस था। 16 सेंटीमीटर मतलब 16 × 10⁻² मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये कितना है, -8, तो -8 इंटू 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 16 इंटू 10⁻², 1 and 2 जा,
10⁻³ अपॉन 10⁻², 10⁻⁻1 और 9/2 इज 4.5, तो -4.5 जूल। ये आ गया वर्क डन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तब, और माइनस आना चाहिए क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो हमने देखा था जब ऐसा हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो ये केस ए हो गया। अब केस बी, अब केस बी को अगर सॉल्व करना है तो तुमको पहले V ऑफ R1, V ऑफ R2, V1 ऑफ R2 फाइंड करना पड़ेगा। अब ये V1 तो इजी है, V1 इज नथिंग बट 1/4πε0 Q1/R, वो तो मिल जाएगा, दैट इज इजी। लेकिन V फाइंड करना है। एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं? डू यू रिमेंबर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, E इक्वल टू माइनस dV/dx लिखा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? R, फॉर अ सिंपल रीजन, यहाँ पे x की जगह पे वेरिएबल R यूज किया है। तो हमको चाहिए पोटेंशियल, लेकिन हमको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज सिमिलर टू, अगर आपको काइनेमेटिक्स याद होगा, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते हो? डेरिवेटिव क्या लिखते हो? V इक्वल टू dx/dt, ऐसा करते हो ना। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया होगा, वेलोसिटी पूछा होगा तो डेरिवेटिव। अगर आपके पास इमेजिन वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस पूछा हो तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो क्या करते हो? V dt लिखते हो इक्वल टू dx एंड देन व्हाट यू डू इज इंटीग्रेट। तो सेम यहाँ पे है, अगर पोटेंशियल दिया होता और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो पोटेंशियल का क्या करते? डेरिवेटिव। यहाँ क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पूछा क्या है? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल पूछा है, तो माइनस साइन और dr को शिफ्ट कर देता हूँ, क्या आ गया? dv। फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग यू विल हैव माइनस इंटीग्रेशन EdR इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। गुड। माइनस ई क्या था? a/r² dr, और यह आ जाएगा v। dx का इंटीग्रेशन x तो dv का v। a कांस्टेंट है, उन्होंने पहले ही बता दिया, और a की वैल्यू भी दे दी है। तो व्हाट यू विल डू इज v इक्वल टू माइनस a इंटीग्रेशन dr/r²। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr/r²? इंटीग्रेशन dr/r², अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, -1/r। -1 नहीं याद हो कोई बात नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि तुम सब याद रखो, ये तो याद होगा ना। इट इज r⁻n+1 अपॉन n+1। तो r² को ऊपर ले जाता हो तो r⁻² हो जाएगा। तो इफ यू कंपेयर, n की वैल्यू कितनी आ गई? -2, तो -2 +1 अपॉन -2 +1, r⁻−1 अपॉन -1, तो इंटीग्रेशन r⁻−2 dr इज -1/r। तो ये अभी याद नहीं रहा तो फिर ये अप्लाई कर लो, तो -1/r। तो देयरफॉर पोटेंशियल V इक्वल टू -a -1/r, तो ये हो जाएगा a/r। मैंने फिलहाल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाला नहीं है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। आपका इंटीग्रेशन हुआ क्या मैथ्स में? नहीं हुआ। तो अगर लिमिट्स नहीं दिए हो तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको बोलते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो कब होता है? जब लिमिट्स नहीं दिए हो, और अगर लिमिट्स नहीं दिए हो तो उस इंटीग्रल का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट मतलब लिमिट्स पता नहीं। और जब लिमिट्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोला होता R1 to R2, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं लिखना होता है। तो वो मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल मुझे जनरल एक्सप्रेशन की जरूरत थी तो मैंने जनरल एक्सप्रेशन बना लिया। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल इज a/r। गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब वही दो चार्जेस, इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड E इक्वल टू a इंटू 1/r², वेर a वैल्यू इज, a की वैल्यू भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो उसको पहले तुमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। How do you convert 8 into 10⁵ per centimeter square?
1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻²। ओके, तो 8 × 10⁵, 10⁻² का स्क्वायर तो 10⁻⁴। करेक्ट, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यू विल हैव 8 × 10⁹ पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया ए का वैल्यू, बराबर, क्लियर। तो अभी पार्ट टू इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। तो ये तो आपको पोटेंशियल मिल गया। ये किसका पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल है, एक्सटर्नल फील्ड का है। किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, एक्सटर्नल फील्ड है। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन तुम देखोगे ना, इसमें एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल 2 बार आए। क्योंकि जब पहली बार तुम चार्ज को लाए, कौन सा चार्ज को लाए पहली बार, Q1 को। Q1 को तुम लाए, कहाँ रख रहे हो, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कहाँ से 8 सेंटीमीटर, ओरिजिन से। Q1 को कहाँ रखा है तुमने, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, -8 0 0। -8 का सिर्फ मतलब क्या था कि पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन के लेफ्ट में है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव लेते हो क्या, नहीं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या आने वाला है, सेम। क्योंकि ए पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 8 सेंटीमीटर, बी का कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो दोनों पॉइंट पे, ए पे और बी पे, एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। और वो कितना आएगा, तो V ऑफ R1 और V ऑफ R2 इज इक्वल टू A अपॉन, A की वैल्यू क्या आई, 8 × 10⁹ मीटर स्क्वायर में। डिस्टेंस कितना है, 16 नहीं है, ये 16 नहीं है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं नोटेशन चेंज कर दूंगा। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, मैं इसको R12 बोल देता हूँ। फिर R12 इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, ये R12 है। और ये जो R लिखा है मैंने, R, ये चार्ज का डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से, ओरिजिन से। तो यहाँ पे कितना था, 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो -2। तो पोटेंशियल कितना हो गया, 10⁻11 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है वो आ गया 10⁻11 वोल्ट, बराबर। तो एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कितना वैल्यू है उसका, 10⁻11। कितना, 10⁻11। अब वापस कनेक्ट करो, ध्यान दो। यहाँ पे पहला चार्ज लाए, ए पॉइंट पर रख दिया। पहले चार्ज को जब ला रहे थे तो एक्सटर्नल पोटेंशियल ने अपोज किया। कितने पोटेंशियल ने अपोज किया, 10⁻11। करेक्ट। तो वर्क डन हुआ, कितना हुआ, Q1 इंटू V। ये वर्क डन हो गया पहले चार्ज को लाने में। तो तुमको चाहिए तो तुम एक एक करके भी निकाल सकते हो। अब जब तुम दूसरा चार्ज ला रहे हो तो कौन कौन अपोज कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड। उसका पोटेंशियल कितना है, इतना ही है, तो Q2 इंटू V। लेकिन सेकेंड चार्ज को लाने में पहले ने भी अपोज किया। पहले फील्ड, पहले चार्ज का पोटेंशियल सेकेंड के लोकेशन पे कितना होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो पता कर लो फिर। ये ओरिजिन, पहला चार्ज लाए, ए पॉइंट पे लाए, ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस था। किसने अपोज किया, एक्सटर्नल फील्ड ने। उसका पोटेंशियल तुमने निकाल के रखा है। तुम दूसरे चार्ज को लाए, बी पॉइंट पे रखा, किसने और किसने अपोज किया, एक्सटर्नल फील्ड ने। एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल तुमने निकाल के रखा है। और एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल का डिस्टेंस तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो, ओरिजिन से। और किसने अपोज किया, पहले चार्ज ने। तो बी पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल कितना था, बी पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल मतलब V1 एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड, ये कितना था, 1/4 πε0 Q1। वेरी गुड, Q1, क्योंकि बी पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल अपॉन R² नहीं होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सा R, 8 सेंटीमीटर की 16 सेंटीमीटर,
16 सेंटीमीटर। क्यों 16 सेंटीमीटर? क्योंकि सेकेंड चार्ज की लोकेशन पे पहले का पोटेंशियल है, पहले और दूसरे ए और बी में डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो वो अगर समझा नहीं तो गए, तो कितना आ गया? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या थी? माइनस माइनस माइनस। वेरी गुड। तो अब तुमको पता है कि करने की जरूरत ही नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ाया था मैंने, तब ध्यान नहीं था। फिर मैंने बताया था तुमको, क्या बताया था कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल मैं टर्न ऑफ कर दूं, टर्न ऑफ, तो क्या बचता है? और ये V1 Q2 V1 यही तो होता है जो तुमने ऑलरेडी फाइंड किया क्या फाइंड? कितना आया ये? कितना आया? हाँ, तो वही होता है फिर। वो तो तुमने ऑलरेडी करके रखा है फाइंड, तो वापस क्यों कर रहे हो? तो करके देखो, वही आएगा। पुट वैल्यूज। व्हाट इज दिस वैल्यू? -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 16 इंटू 10⁻²। ये पोटेंशियल हो गया V1। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? Q2 से। तो वही आएगा। तो वो तो तुमने पहले ही फाइंड करके रखा है। इसके लिए मैंने जगह छोड़ी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने के लिए कि ये जो होता है ना, ये जो टर्म आती है, ये टर्म वही है। क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। वो तो तुमने फाइंड किया, -4.5 तो हो गया। तो बी केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। What is Q1? -2 into 10⁻⁻6. What is this? 10⁻11. What is Q2? 4 into 10⁻⁻6. What is V of R2? 10⁻11. ये तो तुमने पूरा कैलकुलेट किया ही है। -4.5 कितना हो गया? -2 into 10⁻+5 प्लस 4 into 10⁻+5 -4.5 -4.5 -2 -6.5 प्लस 4 -2.5 into 10⁻5। करेक्ट? ये आना चाहिए आपका आंसर। करेक्ट है ना? नहीं, गलत है। तो क्या आना चाहिए बताओ? उसमें 10⁻5 था क्या? नहीं था ना। तो फिर क्या करेंगे? अरे हाउ मच इज दिस? 2 into 10⁻5 मतलब कितना? 2 लाख। 2 लाख माइनस कितना? 4.5 कितना होता है? 2 लाख में 4.5 माइनस करके बताओ कितना होता है? 5 माइनस कर दो। 5 1,99,995.5 इतना आता है वो जूल में। तो 1 2 3 4 5 तो 1.99 इंटू 10⁵ जूल ऐसा आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन वापस बता देता हूँ मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके, उसके बाद आंसर वेरीफाई करेंगे हम लोग। 2 केसेस है। पहले केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, सिर्फ 2 चार्ज है। पहला चार्ज है नो वर्क इज डन, दूसरा चार्ज है वर्क इज डन। पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0। पहले केस में 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12, where R12 is the distance between first charge and second charge। ये होता है 9 into 10⁹। Q1 की वैल्यू होती है -2 into 10⁻⁶ क्योंकि माइक्रोकूलम दिया था, और ये हो गया 4 into 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस था 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका -8 into 9 into 10⁻12 और 9 तो -3 अपॉन 16 into 10⁻²। 1 and 2 का 9/2 is 4.5 और 10⁻1 4.5 10⁻1 तो -0.45 बराबर। तो पहला करेक्शन यहाँ ये आएगा आपका -0.45। गुड, अभी क्लियर है? दूसरा केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा
Q1 पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट प्लस Q2 पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड का एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12। क्यों ऐसा? सेकेंड चार्ज तो ला रहे थे और पहले फील्ड का पोटेंशियल था उस लोकेशन पे Q2 V1, तो वैसा आ गया वो तुमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है। Q1 के लिए तुमको पता है राइट, लेकिन V पता है क्या? नहीं। तो पहले V फाइंड कैसे करेंगे V फाइंड? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी इक्वल टू माइनस ए डी आर, फिर इंटीग्रेट कर लेते हो, फिर आ जाता है V E है A बाई आर स्क्वायर डी आर। ए बाहर निकाल लो तो आ जाएगा V इक्वल टू माइनस ए इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर। तो V इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू 8×10⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, सेंटीमीटर रेज टू -2, नीचे आके क्या हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके प्लस हो गया तो ये आ गया करेक्ट। और ये जो है ये होता है आपका -1/r, माइनस प्लस हो गया तो 8×10⁹ डिस्टेंस है 8×10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो V आ गया 10⁻11 वोल्ट। यहाँ तो कोई गलती थी नहीं, तो करेक्ट है। उसके बाद तो पोटेंशियल मिल गया दोनों ही केसेस में, मतलब V ऑफ R1 और V ऑफ R2 दोनों केसेस में पोटेंशियल सेम आएगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, दैट इज वाई। तो U इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी थी? -2×10⁻⁶, और ये पोटेंशियल कितना आया? 10⁻11 प्लस 4×10⁻⁻6 पोटेंशियल का 10⁻11 माइनस 0.45 हो गया। तो ये हो गया 2×10⁵ माइनस 0.45। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 2×10⁵ मान ही लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली तो वही आ गया। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इसमें सिर्फ ये करेक्शन था कि ये 0.45 आना चाहिए। आई विल स्टिल वेरीफाई विद द आंसर ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है देख लेते हैं, होना तो यही चाहिए, कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स इफ वी हैव डन एवरीथिंग राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग इट इज 2×10⁵ अप्रॉक्सीमेटली 2×10⁵ जूल। तो वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल 8 पॉइंट। ओके, तो देखो ऐसा है, हमने जो किया वहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था ना, वो मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू देयर आंसर्स। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट टेक्स्ट बुक हैज गिवन द आंसर्स, व्हाटएवर वी हैव डन इज एब्सोल्युटली राइट, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये गलती कर दी, अगर ये गलती रेक्टिफाई कर दे तो इसका मतलब 10⁵ रहेगा, और अगर वो 10⁵ रहेगा, पहला केस तो कुछ करेक्शन नहीं है, देयर इज नथिंग करेक्शन इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस में होगा, सेकंड केस में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू थी वो हमने कितना लिखा है? 10⁹, तो क्या लिखना पड़ेगा? 5, तो क्या हो जाएगा? 7, तो ये आ जाएगा 7। बट वो 7 आ गया तो इधर और इधर क्या हो जाएगा? 7। ये 7 हो गया तो 10⁷ और -6 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 1 हो गया तो अब ऐसा है, ये 40 है, 40 में से 20 गया, 40 से 20 गया तो 20 में से 0.45 और माइनस कर लो तो आ जाएगा 19.55 जूल, और टेक्स्ट बुक का आंसर है 19.55। तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, इसलिए वहाँ पर भी करेक्शन है, तो करेक्शन कर लो, विद दैट करेक्शन डन। So next question. नाउ एक चीज़ और थी कि हाउ डू आई नो कि यहाँ पे गलती है। देखो ऐसा है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है -0.45 और प्रेजेंस में आ रहा है 2 लाख, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। तो देयर इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हुई होगी। तो वहाँ पे जो उन्होंने पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। नाउ रीजनेबल, -0.45 एंड 19.55 रीजनेबल है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb. Find maximum torque by the field on the dipole. The work done the external agent will have to do. External agent, यहाँ पे external agent कौन? External electric field. ये एक्सटर्नल एजेंट है क्या? नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो रोटेट करेगा ना। आगे पढ़ो, द वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोटेट कर दिया था ऑलरेडी, कैसे कर दिया था? पैरेलल 0 डिग्री पे कर दिया था। तो अभी हमको उसको 180 से घुमाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क को कितना वर्क करना पड़ेगा टू रोटेट इट फ्रॉम 0 डिग्री टू 180? ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया वो समझ लो। हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। तो पहला चार्ज Q1 विच इज Q बेसिकली प्लस Q, वो 1 माइक्रोकूलम है, ये प्लस Q चार्ज है। और दूसरा चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, क्योंकि ऐसा ही होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है डायपोल में। और दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब 2L is 2 सेंटीमीटर। क्योंकि पता ना डायपोल, रिमेंबर डायपोल में यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ से सेंटर से L और L, तो दोनों में कितना हो गया? 2L। तो 2 सेंटीमीटर 2L, तो 2L इक्वल टू 210 - 1 मीटर, -2 मीटर। ओके, 2L की वैल्यू है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मतलब वोल्ट पर मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड, यू आर सपोज टू फाइंड 2 थिंग्स। नंबर 1 मैक्सिमम टॉर्क, नंबर 2 वर्क डन। तो विच फॉर्मूला विल यू यूज टू फाइंड आउट मैक्सिमम टॉर्क? P sin थीटा। PE sin थीटा ये मैक्सिमम टॉर्क नहीं होता है, ये टॉर्क होता है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90। क्यों 90? क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम, देखो ऐसा है ना, P मतलब कौन? P मतलब कौन? डायपोल मोमेंट। क्या फॉर्मूला था? Q × 2L। Did you change Q? No. Did you change distance? No. तो Q और 2L चेंज नहीं किया, तो P क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो टॉर्क डिसाइड कौन कर रहा है? साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे, साइन 90। इसके लिए साइन 90 लेना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी मैक्सिमम टॉर्क? It will be PE sin 90. What is sin 90 का वैल्यू? 1। तो मैक्सिमम टॉर्क इज जस्ट P × E। डन, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वर्क डन, याद है क्या? वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या? PE cos ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। तो आपको इनिशियल एंगल दिया है ना, कितना दिया इनिशियल एंगल? 0। फाइनल एंगल कितना दिया है? 180। उन्होंने बोला ही है डायपोल को 180 डिग्री से रोटेट करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 0 से। तो 0 डिग्री और इनिशियल एंगल 180 घुमा लिया तो फाइनल एंगल 180। सिंपल। तो पहला पार्ट तो एक्सट्रीमली सिंपल है, इट इज जस्ट P × E। एंड व्हाट इज P? Q × 2L। व्हाट इज Q? 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ कूलम है ये। गुड। 2L, व्हाट इज 2L? 2 × 10⁻²। व्हाट इज E? 10⁵. ओके, 10⁻⁻8 + 5 -3, तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। अब वैल्यू तो यही आनी चाहिए, वैल्यू
टेक्स्ट बुक में आंसर यही होना चाहिए, वेरीफाई करना पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी करेक्शंस, ये करेक्ट है 2 × 10⁻³ फाइन, दिस इज राइट। नंबर 2, वर्क डन इक्वल टू PE cos of initial angle minus cos of final angle, P is Q into 2L। अच्छा ये P into E तुमने फाइंड किया ना आप, व्हाट इज P into E, ये तो है P into E, तो 2 × 10⁻³ cos of 0 minus cos of 180 4 हो जाएगा, 4 क्यों 4 होगा पता है, cos 0 is 1, what is cos of 180 -1, तो 1 + 1 2 × 2 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। वर्क डन न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है, वर्क डन वही आ गया, न्यूटन मीटर इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज जूल, तो तुम जूल भी लिख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, जागते रहो। एग्जाम्पल 8.15, when 10⁸ electrons are transferred from one conductor to another, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे तुमने 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, a potential difference of 10 volt appears between the conductors, find the capacitance of the two conductors। कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, याद है ना, दो प्लेट्स, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल, बट दो कंडक्टर्स होते हैं। उन दोनों में से ना तुमने एक से 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, दूसरे पे डाल दिए। अब अगर तुम 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हो तो जहाँ से शिफ्ट कर रहे हो पॉजिटिव प्लेट बन गया, और जहाँ तुम दे रहे हो नेगेटिव हो गया, एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे नेगेटिव, क्या होता है वो, कैपेसिटर। आपको उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछा है। सबसे पहले आपको पैरामीटर आइडेंटिफाई करते आने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल एन बोलता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तुमने, 10⁸, बराबर, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, जिस प्लेट से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाले उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता, 1e, 2 करूँगा तो 2e, 3 करूँगा तो 3e, n किए तो कितना, ne, तो चार्ज आ गया n is 10⁸ into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, तो हो गया 1.6 into 10⁻11 कूलम का चार्ज। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हम लोग कितना मिला, 10 वोल्ट। तो चार्ज ट्रांसफर करने के बाद दोनों कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया 10 वोल्ट का। और फाइंड करने के लिए क्या बोला है, कैपेसिटेंस। हाउ डू यू फाइंड आउट कैपेसिटेंस, Q/V, सिंपल, Q/V, हो गया क्वेश्चन खत्म। C = Q/V, Q की वैल्यू आ गई 1.6 into 10⁻11 और नीचे है 10 वोल्ट, तो यहाँ गया 1.6 into 10⁻12 फैरड, 10⁻12 मतलब होता है पिको फैरड, तो 1.6 पिको फैरड का कैपेसिटी है। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओह गुड, नाइस। तो फाइनली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का भी कोई क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल 8.16, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C। तो पहले देख लो C कहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज टू बी 1 माइक्रोफैरड, मतलब A और B इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी कैपेसिटर है वो सब हटा के अगर सिंगल कैपेसिटर लगाता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोफैरड। इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैंने वो लिख के भी दिया था, क्या लिखा था, sometimes we can replace the combination of capacitors with a single capacitor which is called as equivalent capacitor। मतलब ये सारे हटा के तुम एक सिंगल लगा सकते हो, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोफैरड।
ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैरड। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक डायग्राम दिया है और आपको C का वैल्यू पूछा है सच दैट A और B इन दोनों में इक्विवेलेंट होना चाहिए 1 माइक्रोफैरड, और जितने भी बाकी के कैपेसिटर है उसके आगे नंबर लिखा है 44184। ये जो 44184 है ना, ये कैपेसिटर्स का कैपेसिटी है, लेकिन इन विच यूनिट्स, माइक्रोफैरड। तो अगर इतना तुमको समझा है तो सिंपल है, टू सिंपल। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो सर्किट है ना, इसका जो इक्विवेलेंट आने वाला है, इक्विवेलेंट में क्या होगा, ये C है, कहाँ से, A से एक प्लेट C को कनेक्ट हो गया और ये B पॉइंट है। तो B पॉइंट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। लेट अस से ये जो एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, तो यू हैव 2 पॉइंट्स हियर। अभी सर्किट सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो भी सीख लो, अच्छे से काम में आएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में जितने भी कैपेसिटर है C छोड़ के, उसको हटा के मैं जब सिग्नल लगाऊंगा तो उसको बोल दूंगा C डैश। क्या बोलूंगा, C डैश। इन सबको हटा के जो भी लगा रहा हूँ C डैश हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जो पॉइंट लिया मैंने और B पॉइंट, इन सब में जितने भी कैपेसिटर है उसको सिंप्लीफाई करके उनका इक्विवेलेंट फाइंड करके जो नया बनेगा क्या बोल देंगे, C डैश। इसका मतलब C के आगे B तक एक ही कैपेसिटर लगेगा, कौन सा लगेगा, C डैश। तो सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा। तो C के आगे एक और है C डैश, मतलब A और B में दो ही कैपेसिटर है, एक है C और एक है C डैश, और ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, सीरीज में है ना। तो फाइनल इक्विवेलेंट क्या आएगा, फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। सीरीज में तो क्या लिखते हो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे आता है ना। सीरीज में कैसे लिखते हो, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे लिखते हो कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ सीरीज को मैं EQ बोल रहा हूँ, C इक्विवेलेंट, और C1 का नाम है C, C2 कौन है, C डैश। तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C डैश प्लस C/C इंटू C डैश। डन। तो वही तो पूछ रहा था मैं, व्हाट इज C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C डैश/C डैश प्लस C। अभी याद रखना, अब हमारा टास्क है, हमको अगर C चाहिए, देखो ऐसा है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितने दी है, 1। अगर मुझे C इक्विवेलेंट पता है, C फाइंड करना, तो कौन फाइंड करना पड़ेगा, C डैश। तो पहले C डैश फाइंड कर लो। अब C डैश कैसे फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करोगे बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट C डैश। यस, C4 एंड C5 आर इन पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल में है। ओके, तो C4 एंड C5 आर इन पैरेलल, C4 एंड C5 आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, उसको CP बोल देता हूँ। तो C4 प्लस C5, व्हाट इज C4 वैल्यू 4, व्हाट इज C5 वैल्यू 4, तो कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों C4 और C5 हटा के, C4 और C5 को रिप्लेस करके, इन दोनों को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल कैपेसिटर डाल सकता था, उसका नाम क्या दिया, CP। तो C3 और CP दे विल गो इन सीरीज। तो आपका जो सर्किट है वो ऐसा बन जाएगा, A से C, उसके बाद C3, उसके बाद CP, राइट, और यहाँ से C1 एंड C2, करेक्ट, CP, C3, C1, C2। ये कनेक्टेड कैसे है, ये ऐसे कनेक्टेड, और यहाँ पे B पॉइंट है, करेक्ट, पक्का, श्योर। C1 एंड C2 आर इन सीरीज, C3 एंड CP आर इन सीरीज। नाउ
नाउ C1 एंड C2 आर इन सीरीज, और मैंने अभी बताया इसको मैं CS बोल देता हूँ। क्या आएगा CS? C1 into C2 upon C1 plus C2. What is C1? 8. What is C2? 4. 8 into 4 upon 8 plus 4. That is 12. 1 and 3 जा तो कितना आ गया? 8/3 माइक्रोफैरड, क्योंकि सब माइक्रो में थे। माइक्रो इंटू माइक्रो 10⁻12, नीचे माइक्रो प्लस माइक्रो 10⁻6, 10⁻12 और 10⁻6, तो कितना बचा? 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6, नीचे 10⁻6 प्लस 10⁻6, तो नीचे 10⁻6 के ऊपर कितना 10⁻12 है, तो कितना बचा? 10, मतलब 10⁻6 बचा तो कौन आ गया? माइक्रोफैरड। तो ये जो तुम्हारे पास C1 C2 थे, उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 8/3। सिमिलरली और कौन है सीरीज में? C3 and CP। ऑल्सो C3 and CP आर इन सीरीज, इसको मैं CS डैश बोल देता हूँ। CP C3 अपॉन CP प्लस C3। व्हाट इज C3 वैल्यू दिया हुआ है इन 1, और CP कितना है? 8। 1 into 8 upon 1 plus 8 मतलब कितना? 9। इसको वैसा ही रखना, इसको कुछ भी मत करना आप। माइक्रोफैरड, डू नॉट डू एनीथिंग हियर, सिंपलीफाई नहीं करना, इसको भी नहीं उसको भी नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया पता है? मैं इन दोनों को हटा के एक CS डैश कैपेसिटर लगाने वाला हूँ, और इन दोनों को हटा के मैं एक CS कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। तो ये जो CS है और जो CS डैश है, अगर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो CS है और जो CS डैश है ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट था CS डैश और CS इस पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। याद है कि आपको? when the capacitors are connected between two common electrical points then the combination is parallel। तो ये क्या हो गए? पैरेलल में आ गए। तो CS and CS dash are in parallel। तो now CS and CS dash are in parallel। अब इसको मैं बोल देता हूँ CP dash, क्योंकि CP पहले यूज कर लिया मैंने कहीं तो, इसलिए CP dash, which means मैं इसको सॉल्व करके ये चारों को हटा के एक सिंगल लिख दूंगा अभी, दैट इज CP डैश। व्हाट इज CP डैश? CS प्लस CS डैश, CS डैश। व्हाट वाज CS? अभी तो निकाला 8/3, और CS डैश 8/9 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, 24/9 plus 8/9, that is 32/9 माइक्रोफैरड ऑफ कोर्स। हो गया? डन, करेक्ट। उसको नाम दिया था ना कुछ C डैश बोल के रखा है, C डैश बोला ना उसको, C डैश। तो ये जो CP डैश लिखा मैंने वो अल्टीमेटली कौन है? C डैश। आ गया C डैश। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 था, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यू हैव C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था? C डैश अपॉन C प्लस C डैश। व्हाट इज C इक्विवेलेंट? 1 बोला है। C फाइंड करना है। C डैश कितना है तुम्हारा? 32/9 अपॉन 32/9 प्लस C। गुड, डन। जो सॉल्व कर लो, शिफ्ट कर दो इस पे इधर, तो कितना आ गया? 32/9 प्लस C इक्वल टू कितना? 32C/9। करो सॉल्व करो, तो कितना आएगा? 32/9 इक्वल टू 32C/9 माइनस C। तो 32/9 हाउ मच इज दैट? अरे 32 में से 9 निकाल लो ना, 23C/9, 9 कैंसल, तो C कितना हो गया? 32/23। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। चलो अभी बता देता हूँ मैं, आई जस्ट सॉल्व इट अगेन, बट आंसर तो आ गया आपका
इस केस में 1.39, 1 पॉइंट समथिंग है, दैट इज 1.39। अभी ध्यान दो, वापस फिर बता देता हूँ एक बार, नो प्रॉब्लम, तो ध्यान दो क्योंकि ये तो पिक्चर है, ट्रेडर है, पिक्चर नहीं है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर जेई नीट के क्वेश्चन में दिखेगा आपको। ये नहीं आया तो जेई नीट छोड़ देना इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ट्रिवियल चीज़ है, बहुत सिंपल है। क्या फाइंड करना था? सी। अंडर व्हाट कंडीशन? ए और बी में इक्विवेलेंट कितना है? 1 माइक्रोफैराड। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी कैपेसिटर्स है दे विल मेक 1 यूनिट, मतलब ये सब हटा के मैं एक लगा सकता हूँ और उस एक का नाम दे देता सी डैश। तो ये सारे रिप्लेस करके मैं एक सिंगल लगा दूंगा, दैट विल बी सी डैश। और वो जो सी डैश और ये जो सी है दे विल गो इन सीरीज, मतलब ए पॉइंट से सी, फिर सी डैश और फिर बी पॉइंट, तो सीरीज। और ए और बी में जितना भी कैपेसिटेंस है उसको बोला है सी ई क्यू एंड दे आर इन सीरीज, तो सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। सी फाइंड करना है तो तुमको सी ई क्यू और सी डैश पता होना चाहिए। सी ई क्यू 1 दिया हुआ है तो क्या पता होना चाहिए? सी डैश। अब सी डैश निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों है पैरेलल में, जिसका नाम दे दिया मैंने सी पी, पैरेलल में है वो, तो सी पी आ जाएगा C4 प्लस C5, दैट इज 4 प्लस 4 8, तो 8 माइक्रोफैराड पैरेलल में। इसका मतलब मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ, जिस CP। लास्ट बेंच यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, C4 और C5 दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों को हटा के मैं सिंगल CP नाम का एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 8 माइक्रोफैराड की। अब तुमने CP लगा दिया, CP लगाने के बाद ये C3 और ये CP किस में चला गया? सीरीज में। और ये किस में है? सीरीज में। तो एक काम करते हैं, ये C3 और CP ये जो सीरीज में गए इसको CS डैश बोल देते हैं, CS डैश, और ये C1 और C2 को बोल देते हैं CS। पहले इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो विल फाइंड आउट व्हाट इज CS डैश एंड CS। तो CS अगर फाइंड करना है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 8 इंटू 4 अपॉन 12, तो ये आ गया 8/3 माइक्रोफैराड। और CS डैश ये हो जाएगा आपके पास C3 इंटू CS डैश अपॉन C3 प्लस CS डैश। ओके, बराबर, करेक्ट, फाइन। क्या है? CS डैश निकालना बाकी है ना, बताओ क्या है, व्हाट इज CS डैश? अरे CS डैश क्या आएगा? CS डैश किससे बना है? C3 और CP से। कैसे? सीरीज में। C3 कितना है? 1, CP कितना है? 8, तो CS डैश क्या आएगा? मैंने यहाँ पे CP लिखना चाहिए था, वो ओके, कोई इशू नहीं है, आई शुड हैव रिटन CP। अब ठीक है, बताओ क्या आएगा? 8/9, तो ये आ जाएगा 8/9 माइक्रोफैराड, दैट इज CS डैश। अब ये जो CS डैश है ये पूरा इधर का ब्रांच, ये ब्रांच, इसको क्या नाम दिया? अभी क्या नाम दिया इसको? CS डैश। और इसको क्या बोला है? CS। ये दोनों किस में गए? पैरेलल में, करेक्ट, पैरेलल में। और उसको तुमने पहले से C डैश बोल के रखा है, तो C डैश पैरेलल में है तो क्या करोगे? CS प्लस CS डैश। कितना आ गया? 8/3 प्लस 8/9, कितना आ गया? ये 32/9। ऐसे आया था ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था हमने, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया था, तो कितना आ गया? 32/9, सब सॉल्व करके हो गया। तो C डैश कितना मिल गया तुमको? 32/9। तुमको क्या फाइंड करना था? C, लेकिन C इक्विवेलेंट क्या था? C डैश अपॉन C प्लस C डैश, तो 1 इक्वल टू C, हाउ मच इज दैट? 32/9, दिस इज C प्लस 32/9। सॉल्व कर लो, C प्लस 32/9 इक्वल टू 32C/9, तो 32/9 इक्वल टू 32C/9 माइनस C, तो 32/9 इक्वल टू 23 C/9, 9 गया तो C इक्वल टू 32/23 विच इज 1.39 माइक्रोफैराड। डन।
And this type of calculations are too simple. This 32 by 23 is roughly 1.4. क्योंकि 23 1 का 23 होता है. What is 23 into 0.4? What is 23 4 का? 9.23 4 का 23 के डबल 92. तो 23 into 0.4 कितना 9.2. तो 23 plus 9.2 32.2. तो 32 by 23 is roughly 1.4. Exactly 1.39. समझ में आया क्या बोला मैंने? तो यू हैव टू मैच विद द स्पीड. क्या होता है जब तुम मैच नहीं करोगे ना, इट इज योर लॉस. क्या है, यू हैव टू थिंक. ये तो समझ में आ गया कि 32 by 23 इज बिटवीन 1 and 2. क्योंकि 23 1 का 23, 2 का 46. अप्रॉक्सीमेटली कैसे निकालते हो? 23 के डबल का डबल 92. तो 23 into 4 is 92. तो 23 into 0.4 is 9.2. Now if I add this up, you get 32.2. तो मेरे पास अगर 32.2 upon 23 होता तो आंसर आता 1.4. एग्जैक्ट है 1.39. ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको जेईई नीट में स्कोर करवाने में हेल्प करते हैं. Just have to know approximate answers. Next question. ये simple है. This is comparatively very simple. In a capacitor of capacitance 20 microfarad, and I told you, जब तक तुमको बोला नहीं हो कि कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में क्या है, तब तक क्या अज्यूम करते हैं? एयर. तो इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm. कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ये एयर कैपेसिटर है. और अगर एयर कैपेसिटर है तो एयर कैपेसिटी की कैपेसिटी को हम C0 से डिनोट करते हैं. तो C0 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20 माइक्रोफैराड. और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है D, विच इज बेसिकली 2 mm 10⁻³ मीटर. गुड. इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ अगर आपको याद होगा, हम दो प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका जो थिकनेस होता है उसको T बोलते हैं. और T कितना है? 1 mm है, मतलब 10⁻³ मीटर है. If a dielectric slab of width 1 mm and dielectric constant 2 is inserted between the plates, what is the new capacitance? So what is the new capacitance? So you are supposed to find out what is the value of C. And if you remember, you know, do you remember AX0 by D minus T plus T by P? Clear? Good. अब देखो ऐसा है, तुम्हारे पास ना C0 की वैल्यू है और C0 की वैल्यू होती है A0 by D. कितना होता है? A0 by D. D कितना है? 2 mm. T कितना है? 1 mm. तो मैं T को D/2 लिख सकता हूँ ना, because D is 2 mm, T is 1 mm, तो फिर T is D/2. ये करने से क्या होगा? मेरा काम आसान होगा. कैसे आसान होगा? C equal to A0 upon D minus D/2. T is D/2. Thickness of the slab is D/2 plus what is T again? D/2 K. लेकिन K की वैल्यू कितनी है? 2 है. 2 है. ओके. तो ये आ गया A0 by D में से D/2 गया तो कितना हो गया? D/2. उसमें से कितना गया? D/4. हाफ में से 1/4 जाना तो 1/4 बचना है ना. हाफ में से, आधे में से उसका आधा गया तो कितना बचा? आधा मतलब 0.5, आधे का आधा 0.25, 0.5 में से 0.25 गया तो कितना बचा? 0.25 मतलब कितना बचा? D/4. तो कितना है? D/4. तो 4 ऊपर गया, 4A0 by D. लेकिन इसको तुमने क्या बोला है? C0. लेकिन C0 कितना है? 20 है. तो कितना हो गया? 80 माइक्रोफैराड. तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी? 80 माइक्रोफैराड. तो 80 आना चाहिए. देखते हैं आंसर में दिया है क्या. कौन सा क्वेश्चन था वैसे? 8.18. कुछ छूट गया क्या? एक रह गया ना, 8.17 रह गया. चलो वो कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट विल सॉल्व. पहले इसका तो कंफर्म कर लो, इसका तो देख लो पहले कितना आता है.
Just a minute. I don't have answer to this. एक बार चेक कर लेते हैं. Just a minute, then रिवाइज हो जाएगा. कैपेसिटर का कैपेसिटी था 20, डिस्टेंस था 22 mm, डायरेक्टर स्लैब का विड्थ है 1 mm, मतलब d/2 है, कांस्टेंट की वैल्यू 2 है. न्यू कैपेसिटेंस पूछा है. ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस पूछा है आपको. तो दिस इज व्हाट यू विल डू. t/2 d/2 4 d/2, ये प्लस है, प्लस बीच में क्या है, प्लस है, तो थोड़ा सा क्योंकि d/2 प्लस प्लस है ना, प्लस इधर प्लस है कि नहीं. हाँ, तो व्हाट इज d/2 प्लस d/4. आधे में 1/4 ऐड कर रहे हो ना. हाँ, तो कुछ ठीक है, सिर्फ d/3 होगा, बाकी कुछ नहीं है. यस, सिर्फ d/3 करना है. और ये भी जोक है. क्यों जोक है पता है? 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33 × 20, नहीं तो 80/3 भी कर लो, 26.66 माइक्रो. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन 8.17 रह गया, तो कर लेते हैं. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगा फॉर्मूला बताओ, एरिया कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन बताओ जल्दी. 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. प्लेट सेपरेशन मतलब कौन, स्मॉल डी, कितना है 2 mm है. क्या क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, मतलब पहले तुमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है C0. C0 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाले, तो क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में एयर. तो पहले C0 फाइंड करो. फिर क्या बोला है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड कंप्लीटली विथ अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 6.7. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.7 इंसर्ट करने के बाद व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी, ऐसा है क्वेश्चन. तो who will tell me what is the formula for C0? A epsilon 0 by D. Very good. And what if I insert a dielectric completely? K into C0. बस मतलब K A epsilon 0 by D था, लेकिन A epsilon 0 by D C0 है. तुमको सिर्फ फाइंड करना है C0, दूसरे केस में K से मल्टीप्लाई कर देना है. हो गया, सिंपल. व्हाट इज A वैल्यू? A वैल्यू 4 × 10⁻⁻4. व्हाट इज एप्सिलॉन 0? 8.85 × 10⁻12 अपॉन D. D कितना है 2 × 10⁻³ है. ओके, 1 जा 2 जा. व्हाट इज 8.85 का डबल? 16. 8 2 16. 0.85 का डबल इज 0.85 का डबल बताओ. 8 2 16. 0.85 2 1.7. 16 में 1.7, तो 17.7 हो गया क्या, बराबर. हाउ मच इज द रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द थिंग? 10⁻⁻4 -3 मतलब -1 और 10⁻⁻12. 10⁻⁻12 और 10⁻⁻1 था कि नहीं? हाँ, तो था ना. तो ऐसा करेंगे, 10⁻⁻1 था इसके लिए, बराबर. ऐसा क्यों किया? व्हाट इज दिस? पिको फैराड. कितना आ गया? पिको फैराड 1.77. ये हो गया केस नंबर 1. केस नंबर 2, when you insert dielectric it is just KC0. ये कितना है 6.7 into C0 is 1.77. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 point something. तो ये आंसर आ रहा है आपका 11.859. 11.859 पिको फैराड. चलो